benefit of tax-free income, which is 7 lakh rupees. Earlier it was 5 lakh rupees, and there is a capital investment of 10 lakh crores, which is more than 33% from the previous year. Also, there is a 7,000 crores of investment invested in e-courts of to improve the productivity of judicial system of India. And also, there is a highest ever budget allocated to railways this year. People say that it's an election-friendly budget, but no, but it's good for the country. Yeah. Okay. सो द टैक्स बेनिफिट जो टैक्स फ्री इनकम का जो बेनिफिट है आई थिंक कि जो सैलरीड क्लास है उनको बहुत बेनिफिट होगा जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख ऑल्सो जो स्टेट गवर्नमेंट को 50-year लोन सैंक्शन होते थे वो उन्होंने बोला कि इंटायरली कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसको अलॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट पॉइंट. And also there is a reduction in imports of diamonds and lab grown diamonds will be there. So hope so there will be a reduction in prices of diamonds as well. Also by this, the collection rate also will go down because many of the people used to do frauds for taking exemption from the tax. But now this tax slabs which have increased by the government, this will be a benefit for the economy so that it will lead to progress. Tax evasion will be reduced. आई डोंट थिंक कि टैक्स इवेजन इससे रिड्यूस हो सकता है बिकॉज वो जो बेसिकली बेनिफिट है वो ज़्यादा सैलरी क्लास को जाएगा और जो टैक्स इवेजन होती है वो मेनली बिजनेस पर्सन होते हैं तो टैक्स इवेजन पे आई डोंट थिंक इतना इफेक्ट होना चाहिए इसका मेन बेनिफिट सैलरी क्लास को होगा बिकॉज उनको अपनी इनकम का जो ह्यूज चंक देना पड़ता था तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा तो आई थिंक कि टैक्स इवेजन का कोई इसमें नहीं होना चाहिए वो होगा. So the highest tax slab, which was earlier 42 point something%, and now it has come down to 39%. The highest ever tax slab, including surcharges as well. Yeah. Okay, I think you don't have more points. Your group gets 2 out of 10. I think can we start make remarks? We will go into it. Firstly, I will start. First of all, सुनो ध्यान से. First of all, whenever you are starting a GD, it should always be a structured way. It should never come along that you are just stating a fact and you are just going along with the points whatever you know. For example, you started the GD. It was a good start, but always present your opinion first. That this is what I believe, and these are the points pertaining to which I believe that. You just stated the facts. What's the purpose of the same? No. Second thing, for you, for all the B school GDs, please keep it in English only. I know, me too. I too is more comfortable in Hindi as compared to in English, but please keep it in English only. Second thing, you stated one of the facts like diamonds. When the whole of budget is left, why are you focusing upon such a luxury good which is not at all being a necessity? Small impact. You should have focused more upon maybe the Manrega part or more of the rural area part or other parts. But focusing upon a diamond in such a game where it's only, I guess only 0.5% of India is currently consuming diamonds, and it is a luxury good. You should not be focusing upon that. And again, the major fact, please, in the GD, even if you do not know anything, add a point, add opinion, listen from each other. For example, I guess you did not state any points. उसने कुछ बोला, he must have said something. उससे सुन के कुछ opinion लो. Because if you are keeping mum in the whole of the GD, you are not adding any of the point. And another thing, please do not be aggressive at all. Do not be aggressive at all. हम पंजाब में रहते हैं. Is there any good B school in Punjab right now? No. तुम जहाँ पे भी बी स्कूल में इंटरव्यूज देने वाले हो वहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स होंगे those would be either Bengalis either South Indians. They do not like aggressive people at all. अगर तुम ज़्यादा over enthusiasm, over ambitious दूसरों को कट कर रहे हो, you are showing yourself कि उनकी likability में नहीं आने वाले. As simple as that. So for any GD, the main purpose is to give your opinion on the facts. So the facts which were presented, ये जो इंडिया टुडे का वो एक फोटो आती है उसमें 5 पॉइंटर गिवन होते हैं तो वो ये किसी को भी पता चल सकते हैं. You might have your opinion only on one fact. तुम एक भी पढ़ के आए हो, but if your opinion is strong, it will make a huge impact. So मतलब capital expense बढ़ रहा है 33% से you say. So
10 लाख कैपिटल एक्सपेंस से कंट्री को क्या फर्क पड़ेगा? सो दैट इज द मेन पॉइंट विच यू हैव टू रेज के कैपिटल से मतलब मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स ओवर हियर, तो तुम किन्सियन थ्योरी से कैसे वो फ्लो डाउन करेगा लोगों के अंदर, कैसे लेबर के पास एंड में वो ड्रिल डाउन करेगा एंड इकोनॉमी स्पर होगी, ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी। क्योंकि केपेक्स कर रहा है, कौन केपेक्स कर रहा है, किसको फायदा हो रहा है, वो पैसा हवा में तो उड़ नहीं रहा है, लोगों के पास ही जा रहा है ना एंड ऑफ द डे। सो फायदा क्या हो गया हर चीज से? सो मैं जो भी पॉइंट्स नोट करे थे, फर्स्ट इज ये कैपिटल गेन वाला। सेकंड था कि मतलब टैक्स इवेजन रिड्यूस होगी। कैसे रिड्यूस होगी टैक्स इवेजन? सो इसके अंदर आई नो 3 पॉइंट्स टैक्स इवेजन कैसे रिड्यूस करने के लिए वो किया है। वन वॉज 5 लाख के ऊपर अगर तुम इंश्योरेंस प्रीमियम ईयरली देते हो, then the income from that would be taxable. It won't currently it is tax free under ATC, but it will no longer continue to be tax free. It will be taxable. 10 करोड़ से ऊपर के घर के ऊपर आपको कैपिटल गेन्स का कुछ वो मिलता था रिडक्शन। आई एम नॉट प्रीटी श्योर ऑन दिस पॉइंट, बट मतलब अल्ट्रा लग्जरी हाउस सेल के अंदर यू आर नॉट गेटिंग द कैपिटल गेन्स का जो पहले बेनिफिट मिलता था वो अब। और एक रियल एस्टेट ट्रस्ट होते हैं, तो उसके अंदर मतलब ये तो काफी ग्रैनुलर हो गया। रियल एस्टेट ट्रस्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें देयर इज वन कंपोनेंट कॉल्ड डेट रीपेमेंट। इट वाज अर्लियर नॉट टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल नाउ। सो द रिच, दीज आर द टूल्स दे यूज टू इवेड टैक्स, एंड इस ये सब चीजें करने से अब टैक्स इवेजन कम होगी, ठीक है। सो even though the rates the ceilings have increased, still the total quantum of difference to the government on the tax earned won't be much, because they are plugging the gap somewhere else, right? लैब ग्रोन डायमंड्स वाला जो पॉइंट था, तो लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर क्या हुआ है ये, मतलब you cannot just say that lab grown diamonds अब सस्ते हो जाएंगे, something like that. So what they have done is the seeds which are used to produce lab grown diamonds, they have reduced the custom duty on those seeds to 2.5%. So because of that reduction in the custom duty, those seeds can be imported and lab grown diamonds can be produced in India at a cheaper rate, जो अभी mostly import होते हैं। तो what is that doing? It is giving more impetus to production in India, and it is making it cheaper for the producers. So मतलब इंडिया में ज़्यादा produce हो। और क्या था? State government loans was a good point. इसका भी बताओ कि मतलब state government loan से क्या फायदा होगा? जो capex कर रही है state government, मतलब जैसे पंजाब में the major problem right now is most of the money is spent on revenue items, right? So जो एक्सपेंस से कोई स्टेट को फायदा नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे सारा पैसा जा रहा है, एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है, ऐसी बकवास चीजों पे जा रहा है। सो कैपेक्स से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो रोड बन रही है, इंडस्ट्री आएगी, रेल बन रही है, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सो यू हैव टू गिव बेनिफिट्स ऑफ एवरीथिंग। ईच पॉइंट यू से यू हैव टू ड्रिल इट डाउन कि मतलब इससे इम्पैक्ट क्या है इसका, ठीक है। So you can state both negative and positive points. उसका कोई चक्कर नहीं, ये नहीं है कि मतलब डिबेट टाइप के I am for this budget, I am against this budget. You can state both negative and positive points, the missed points in this budget, the positive points in this budget. But each and everything you say, you have to give your opinion on. So, sorry Nabru, I'm just taking a minute. So whenever you're structuring a GD, it should be initially like everyone should start with the positive points, or everyone should start with the negative points. For example, you took a lead. You should have taken a lead and be the leader of the GD, and should have initiated like this. Let's all discuss the good or the positive points of the GD first, give our opinions on them, and after that we will go upon the negative points or the missed opportunities. Now you stated a point that the tax slabs has been cut. Instead of representing points just like a fact, you should have gone like majority of Indian population has been living in this bracket. Now this bracket has reduced, so this will provide further more impactance. And now coming to the economics point, marginal propensity to consume, which will further lead to economic growth and all. Now, but this will also lead to loss to the government revenue. Now this revenue has been fulfilled by all the other sources which you were mentioning. It should have been gone like that. So always make sure it should be a structure to the GD. If it is no structure, someone is going haywire, what it will lead to, instead of selection of
I guess 8 out of 10 or 6 out of 10 of the members, it would be like only one member is selected. So never get into that risky aspect at all. So, in my opinion, there would be cases a lot of times when you do not know anything about the topic, and there would be cases when you know a lot of things, facts about the topic. So, like in this case, most of you did not know anything about the topic. So, what you can do is you can listen from other people's point, make an opinion. For example, he stated about the railway thing, the infrastructure. So you can take an opinion on that it can enhance tourism or how that can benefit the economy. So that adds value to the GD and it gives you more points as well. So there are some brownie points also in the GD. So for example, if you start the GD, so you get brownie points because you are leading the group. It shows that you have leadership qualities. So that gives you brownie points. And if you drive the GD, for example, if someone just moderates the GD, that if this person hasn't spoken, so if someone says that please give her a chance so that she can speak, so that shows the teamwork of the whole group and the person who is initiating that. So that is there. And if you quote the sources also of the facts, so in this was already on live television, so no need to quote sources here. But sometimes you get topics in which you can quote the sources like Reuters or some credible sources. So that also gives you a good edge over the other people. So these were the main things that I wanted to highlight. One more point. This is not regarding GD, but just to add to the knowledge. So tax. So government. Why is the government moving from the old tax regime to the new tax regime and increasing the tax slab? उनको तो revenue loss ही हो रहा है ना end of the day. So when you go back 20-30 years, the impetus of the government was to induce savings in the economy. ठीक है, तो लोग सेव करें तो उसके लिए सेविंग टूल्स बनाए गए डिफरेंट. पीपीएफ बना, पीएफ बना, उसके अंदर बाकी एनपीएस तो मतलब नया ही आया है, तो they were inducing people to save, right? So now as the economy is progressing, they want the middle class or the lower middle class to spend more. So they are moving from a savings driven tax regime to a tax regime where the taxes you pay is less, you don't end up mandatorily saving anything, and which will lead to, in the end, more spending by the people. So what does more spending do? It leads to growth for the economy. If the lower middle class and the middle class is buying more soaps, they're moving to more premium brands of biscuits. Earlier they were eating Parle-G, now they start eating bourbon. So it might be a very small thing for anyone here, but for the economy, it's a very big thing that people have doubled the expense they make on a packet of biscuits, right? So, जब लोग ज़्यादा spend करेंगे, people will not, when people start not investing in gold and start spending in the economy, it leads to better growth impetus. So, the impetus is towards growth. They are trying to discourage mandatory savings and letting people spend more. That's just the point I wanted to make. Another thing I wanted to add, see, when you are in a group, currently there is a bias that all of you are commerce graduates right now. But in a B school group, there would be 7 engineers, 2 BCom graduates, and 1 would be art student. So if a topic like this it's in your favor because you can add points like economics, something margin propensity to save, propensity to consume, or something totally different points, which I'm damn sure that engineering guys are not aware about. So always play to your benefit. Always do add your whatever prior knowledge you are having to the topic so that you can add another new angle to the same. If you are not adding totally the same, it's just like you are playing into their hands. For example, if we are the panelists and you are a BTech graduate and you are a BCom graduate and a topic regarding the budget comes and both are equal, she would be selected because it is not her domain, but still she's scored the same points as you. So always do add your points, always do add your expertise in the same. Give your knowledge, but please don't bullshit.
कि मतलब ऐसे ही नहीं कि कहीं भी के मैं आज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ के आई हूँ, आज मैंने बता के जाना है। Exactly. ठीक है? That should be I was something- seeing a debate on TV a few days back. The Congress spokesperson, तो वो मतलब the Adani issue was being discussed, and it felt like इंटरव्यू से पहले वो किसी को बोला है 2 मिनट में मेरे को इकोनॉमिक्स के 4-5 वर्ड बता, एंड वो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ये वो और किसी का किसी चीज से रिलेशन नहीं था। तो जस्ट डोंट से थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, थोड़ा दिमाग लगा। And one golden rule for all the boys over there: never ever never ever cut a girl in the GD. Point communication. That's a golden rule over there. Another thing. Just like Nabru said, display the leadership qualities over there, but do not display a quality over to a person who is not willing to speak. For example, he is not willing to speak, and you give him the chance. Now let him speak, and he would be like, "नहीं मुझे नहीं बोलना." फिर क्या करोगे? And the same thing happened with me at IIM Kozhikode interview, at IIM Kozhikode GD. I was being very, very ambitious, very, very high in enthusiasm. I was taking the lead of the group, and I told, "Now let this girl give a chance to speak." And she was like, "I am a girl, I will speak whenever you want. I will not take validation from you." And it was totally against everything. मतलब अगर किसी को कोई ऐसे मतलब यहाँ पे तो तुम्हारी बहुत ही सिविलाइज बहुत वो जनरली क्या होता है कि मतलब मैंने ऐसे बोला and someone starts speaking over me after that. So after that you can say that you were trying to make a point. Exactly. हाँ, मतलब Give the वहाँ- chance like this, not to someone like this. For example, he is taking the lead and she does not want to speak, and please sweat, I do not have a point. It will rather act against you. But like Navnoor said, when you don't know anything, listen. So in the end, as God would have it, HSBC के अंदर जब मेरी सिलेक्शन हुई, I didn't know shit in the GD, right? मेरे को कुछ भी नहीं पता था टॉपिक का। द टॉपिक वाज चंदा कोचर ने क्या क्या स्कैम किया। तो एक बहुत ही एंथुसियास्टिक आदमी सबसे पहले बोला और वो कहता कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। मैंने कहा वेरी गुड। उसने सारे एक्सप्लेन किया। मैंने बोला कि चल अब तू चुप कर जा, अब मैं ओपिनियन देता हूँ इससे। तो मैंने उसके अंदर अपना एचआर सब कुछ घुसा के ओपिनियन दिया कि मतलब स्कैम हैपेंड। सो व्हाट यू हैड टू सी वाज not if Chanda Kochar had influenced people, matlab given direct orders to people, but what you had to see was if Chanda Kochar says something, do the people in the organization have the nerve to speak against her, right? Even if she doesn't, if she has an opinion that we should give this loan, then does the RM who is managing the relationship have the guts and has the nerve to say कि मतलब मैं नहीं करूँगा? Most of the organizations, especially जो हम लाला organization बोलते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो बॉस ने बोल दिया वो ही होता है। तो मतलब ऐसे if you don't know anything, listen to others, form your opinion and then speak. Very important. Or many times topics will be given where you don't know anything. Carry on. Opinion जरूर देना है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं हो पाएगा. There would be at least 2 to 3 people who would be laying down facts over there. Just listen to them. अगर नहीं पता टॉपिक के बारे तो obviously you cannot start. तुम इनिशिएट नहीं कर सकते, पर मेक श्योर कि तब भी तुम्हारी 2 से 3 एंट्रीज हो रही है. इन अ गुड जीटी, अगर इफ यू आर लीडिंग, द गुड एंट्रीज आर 3 to 4. If you are not leading, the good entries are 2 to 3. And always try, if you are unable to lead the group, always try to summarize the group. For example, he led the way. Now he's not getting a chance to summarize. Someone else should take a chance to summarize. So overall we discussed these facts, and overall, as per the opinion of the group, whether the budget was fruitful or not, do give a overall summarization at end. Because if there is no summarization at end, there is no, what you can say, direction or the final result of the group discussion. There should be a result to a group discussion also there. मैंने अंगद के पॉइंट को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. We put in our interview preparation, case study discussions, GD discussions. There is a very important point which I share with all our students. Always find fault with the system. Never find fault with the person. As he said, was the system in ICICI strong enough where people could raise questions, or were there 2 or 3 layers of audits? In PNB's case, only one audit was there, 10,000 crore, जो नीरव मोदी लेके उड़ गया, MOU etc. तो
for 10,000 crore, big amount, the system should be there, 2 external auditors, 1 internal auditor, and 5-member committee should be approving it, not just the 1 regional head. So try to find fault with the system rather than the people. आज किसी एक ने exploit किया, कल को कोई और exploit करेगा. So that is one important thing. Secondly, देखिए topic ये तो अच्छा इस हॉल में आप थोड़ा सीधे होके बैठो दोस्त. इस सेंटर में श्रीनाथ, हाँ थोड़े सीधे होके बैठो यार, यूथ हो आप ऐसे हो जाओगे तो देख गया. मेरे क्लासेस में इंटरव्यू में फर्स्ट प्रोटोकॉल, only your lower back should touch the chair. You convey positive energy. Only lower back should touch the chair. देखो आप फर्क पड़ जाता. आप ऐसे बैठो. आप ही के कॉलेज का था एक लड़का, I will not name him. He went for a interview which he said कि just देने के लिए जा रहा हूँ सर. मैंने बोला मैं क्या तेरी झील नहीं दिख रही. और एक 4 मंत्रा हैं to crack any interview and any GD. First is 300% preparation. अब जो बजट है उसका 6 घंटे का हमने 4 घंटे का सेशन हुआ है. अभी एक लड़का है यहाँ पे व्यूकम, इनकी इंटरव्यू ग्रेट लेक्स की थी. ग्रेट लेक्स चेन्नई. It was on the budget day. They asked him what important to finance is happening today. He said budget. They said do you know anything about it? 4 point ठक 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 सीधा बोल दिए. अब अगर वो सिलेक्ट नहीं करेगा तो he will be at a loss. आपकी इंटरव्यू की तैयारी, आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, जीडी का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट शुड बी एट लॉस बाय नॉट सिलेक्टिंग. He answered 4-5 questions. They appreciated him because they and this is, मैं इस हॉल में पूछता हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने बजट सुना लाइव, 1 2 3 4 5 8 10, और कितने हैं जिन्होंने बाद में अच्छे से बजट को समझा कि क्या है क्या नहीं है. वेरी फ्यू. सो यू गाइज आर सच पीपल जिनके घर में न्यूज़पेपर आता है, आपके पास एक्सेस है मोबाइल का, स्मार्टफोन्स हैं, और अगर आप जैसे लोग जस्ट 5% और 6% ऑफ पॉपुलेशन है कंट्री की, और चलो 20% लगा लो, अब तो कवरेज हैज इम्प्रूव. बाकी जिनके पास है नहीं वो वोट देने जाना है, आप लोगों ने जाना ही नहीं. देश कहाँ से बदलेगा? सो फर्स्ट इज एटलीस्ट बेसिक करंट अवेयरनेस तो होनी चाहिए. मैंने सोचा हुआ था मैं क्या इस टॉपिक देंगे, अगर इस पे बिल्कुल ही ना बात हुई तो देन आई विल गिव अ टॉपिक इजी वन, पीस विद पाकिस्तान. वो हर किसी ने कर लेनी बात, हर रोज ऐसा सुनते हैं ये कारगिल वॉर हुई, ये हुई, वो हुई, एटसेट्रा. तो पहला पॉइंट जो विच आई यूज्ड टू शेयर विद माय स्टूडेंट्स फॉर जीडी विच गिव देम यूनिक पॉइंट्स, और अगर आपको ऐसे लिखना हो कहीं पे भी तो वो है ओरिजिन ऑफ द टॉपिक. ट्राई टू गो कहाँ से आया टॉपिक. अब आप अगर बजट पे हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 बजट 2 बजट का आइडिया होना चाहिए. आपको ये आइडिया होना चाहिए आज वर्ल्ड रिसेशन में जाने वाला है अगले 12 महीने में, ले ऑफ्स हो रहे हैं. आज सुबह मैंने पढ़ा कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने 1500 एम्प्लॉइज, आज जूम है 1500 पीपल, एंड इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन. तो क्यों कैपिटल स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ लगाया, क्यों 33% बढ़ाया? एज ही सेड टिकल डाउन इफेक्ट, उससे स्टील लगेगा, सरिया लगेगा, सीमेंट लगेगा, ट्रक्स लगेंगे, लेबर को वर्क मिलेगा. सो गवर्नमेंट नोज द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट इनटू रिसेशन. इंडिया का कोई बता सकता है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इंडिया का कितना शेयर है? 3.3%. वेरी गुड, एक्सीलेंट. गिव हिम अ चॉकलेट एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज. वेरी गुड. हमारे शोर में भी आएंगे. वेरी गुड. जस्ट 3%. और चाइना का 30% almost. आई थिंक अराउंड 19-20. 19 point something. तो पॉइंट ये है कि हम जब रिसेशन आता है हम लोग कैसे बच जाते हैं. हमारे यहाँ सिर्फ स्लो डाउन आता है, हम रिसेशन में नहीं जाते. जब रिसेशन आता है तो एक्सपोर्ट की लेस डिपेंडेंस हमारी कंट्री की हमारे लिए एक धून बन जाती है. हालांकि वो होना नहीं चाहिए. हमें एक्सपोर्ट में एटलीस्ट अगर चाइना का 19% है, हमारा भी 15-20% शेयर होना चाहिए. और देन व्हेन द रिसेशन कम्स वी आर ए सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी. मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स व्हाट वी प्रोड्यूस, कारें, गाड़ियाँ, सब हम खुद ही खरीदते हैं. सो द पॉइंट इज, अब मतलब एक तो वो हो गया ओरिजिन ऑफ द टॉपिक, क्या एनवायरनमेंट है, कहाँ से आ रहा है, पिछले बजट से इस बजट के, तो वो थोड़ा समझना है. अगर पीस विद पाकिस्तान है तो 2 वार्स हो चुकी हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों का आज के दिन में कोल्ड वार सिचुएशन चल रही है. किसी दिन भी पीओके पे क्लैश हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसके बाद भी वार हो सकती है, और वार हुई तो इट इज लाइकली टू बी अ न्यूक्लियर वार, बिकॉज द वीक वन पाकिस्तान कैनॉट रेजिस्ट इंडिया फॉर मोर देन 3 days in conventional war, and India cannot resist China for more than 3 days in conventional war. So जो वीक है उसे न्यूक्लियर यूज करना ही होगा. पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है जैसे इंडिया की. इंडिया की है नो फर्स्ट यूज. हमारे ऊपर फेंकोगे तो वी विल हैव मैसिव रिटेलिएशन.
बट चाइना के अगेंस्ट वो हमारा एक वीक पॉइंट। पारिकर साहब डिफेंस मिनिस्टर बोलते रहे कि आप उसको पॉलिसी को चेंज कर दो, so that China has a nuclear threat from us. China is conventionally very powerful. The point is from the background कहाँ से आ रहा है, यहाँ से start होनी है GD. Both are nuclear armed, both have had 2 wars. We are always having points of differences, very strong bad relations. So any time war can start. So it is very critical and it can lead to nuclear war. तो ऐसे start देगा जो देगा, फिर कहेगा कि okay let's all discuss about it. फिर बाकी का मौका मिलेगा। अब ये तो इसमें मेरा समझ ही आ रहा है कि पढ़ा हुआ एक बंदे नहीं था, आपने पढ़ा हुआ था बजट, तो he could at least put 2-3 points. Otherwise इस ग्रुप को 10 out of 2 मिलते, he gets 4 or 5 out of 10 because of the points as he has shared कि start करना है। तो at least देखो ये तो बहुत भोली वाली जीडी है, कई जीडीज होती है फिश मार्केट जीडी, और 80% लोग यही सोच के आए होते हैं हमने बस अपने बोलने हैं पॉइंट, हमने सुनना नहीं, लिसनिंग इज क्रिटिकल। और फिश मार्केट में भी जैसे दानिश ने बोला कि यू हैव टू मेक 3 एंट्री, सुने ना सुने, वो ऑब्जर्वर देख रहा है आपको, वो पब्लिक सुने, 1-2 बार ट्रैक पे लाने की कोशिश। डियर फ्रेंड्स, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो बच्चे? If anyone wants to contribute anything, he or she can raise his hand. I'll give him or her the chance. So in a fish market, people are not listening to you. Try to make it. Dear friends, we are not able to make any good discussion. Let's start one by one, or let others, let's listen to others' view, etc. So origin एक होता है, फिर politically हर एक टॉपिक को 8-10 एंगल से सोचो, politically, culturally, technically, then legally, systems point of view, कुछ ना कुछ जैसे उन्होंने बोला, कोई और बोल रहा है, अपने को पॉइंट मिल जाएंगे बोलने के। शुरू में नहीं भी आता तो भी। एक बच्ची का इंटरव्यू में पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग पे, एमडीआई का इंटरव्यू था, तो शी वाज फ्रॉम बीकॉम, तो शी डिड नॉट नो एनीथिंग, बट देयर वाज ए फर्स्ट पेज न्यूज़ इन टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लाउड कंप्यूटिंग के इंडियन डिफेंस और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन था, क्योंकि जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही थी वो हेवाई चाइनीज कंपनी का उसमें मेजर स्ट्राइक था, तो दे कुड हैव टेकन आवर सीक्रेट्स आउट, तो इसलिए वो टॉपिक क्रिटिकल था। तो न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? वेरी गुड, जो पढ़ता है देखो उसका पता चल गया कि ही वाज डूइंग गुड, ओनली फ्यू। तो आप लोगों के ऐसे तो देश नहीं बदलेगा। और मनी, आपको पता है इस बजट में गवर्नमेंट ने आईएम्स को जो ग्रांट जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसको कम कर दिया, जबकि वो बढ़ाना चाहिए था ताकि फीस कम हो, और फीस और बढ़ जाएगी। और जो इस बजट में नहीं हुए, आई विल टॉक अबाउट दोस फ्यू पॉइंट्स मेजर। तो मेजर पॉइंट्स आपको पता है कल्चरली, सोशली, इससे देखें, बाकी 90% ऑफ माय पॉइंट्स आर कवर्ड बाय देम, देयर फीडबैक, तो यू शुड टेक इनटू अकाउंट। नाउ मेजर नेगेटिव्स, कोई नहीं बोला नेगेटिव्स ऑफ द बजट, क्योंकि देखा ही नहीं ਆਪਾਂ ध्यान ही नहीं देते कि बजट की होना चाहिए। कंट्री ਨੂੰ की चीज़ां बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। आपको पता है डॉलर 82-83 पे है, कितनों को पता है? हाँ, सारों के 84 हो गया अभी, 82 पॉइंट। तो I was in Philippines in 2008. I left Philippines in 2008. Philippine peso was around 45, Indian rupee was around 45 against the dollar. Today Philippine peso is 53 and we are at 83. And it should hit all of us. Do we get it? और क्या रीजन है, कोई बताए मुझे यहाँ पे, आप बताओगे? सबसे बड़ा रीजन 1 रुपए वाला रीजन, मैं बोलता हूँ तो 5 पैसे वाला पॉइंट, 10 पैसे, 1 रुपए वाला पॉइंट बताओ। So first of all, कि हमारे ऑयल इंपोर्ट्स एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यार चॉकलेट दे जाओ उनको। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? माधव, वेरी गुड। So सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बिल, सॉरी इंपोर्ट बिल, अराउंड 80% इज क्रूड ऑयल। अब बजट में पहला मैंने ये लिखा पॉइंट, नो एलोकेशन एंड फोकस ऑन क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ दिस बजट। व्हाट इज क्रूड ऑयल? कैन anyone describe it? No, animals and human fossils decomposed form crude oil. So we say, all scriptures say that we had the oldest civilization on the world, of the world here. So there were pralay in Arab, there was pralay in Canada, USA, वो बर्फ के अंदर से ऑयल निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ ऑयल नहीं है, no way, it is there. रिलायंस को मिल रहा है केजी बेसिन में, नेचुरल गैस भी मिल रही है, ऑयल भी मिल रहा है, हमारी कंट्री में ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। एंड यू ऑल शुड नो, आज से यूपीए के सिटिंग मिनिस्टर वीरप्पा मोइली, he gave a statement, it came in the first page of Times of India.
there is a pressure from oil lobbyists on any sitting oil minister not to go for oil exploration in India. $5 $6 पॉलिटिकल मास्टर्स को जाते हैं, पहले किसी को जा रहे थे, अब किसी को जा रहे हैं, कल को किसी और को जाएंगे। नहीं तो एक मिनिस्टर जिसने ओथ ली हुई है, जिसको सिक्योरिटी मिली हुई है, रिटायरमेंट के बाद भी जिसके पास सिक्योरिटी रहनी है, उसको कोई कैसे थ्रेटन कर सकता है, कैसे प्रेशर डाल सकता है? और जिस दिन इंडिया अपना क्रूड ऑयल निकालता है, आज अभी बच्चों का हमारा प्रेजेंटेशन थी, उसमें निकला 300 बिलियन बैरल्स का अनऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया में इतना क्रूड ऑयल है, एंड वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सप्लोर इट. नो गवर्नमेंट हैज फोकस ऑन इट. So this is the biggest failure of this government in last 7-8 years. आप इसको कर लो, 4 साल में आएगा, स्टार्ट होगा अभी, but your dollar will become 33 rupees, and will move towards 80%, 86% of India's energy depends on imported crude oil. Huge amount and huge dependence. Second, nothing has been done to motivate people to pay taxes. आज कोविड आया, अब आप लोगों को, मैंने बच्चों को बोला ये यूज करो कहीं पे अगर इस पे यूज करना है. कोविड में SMME, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज को निर्मला सीतारामन और वो आते थे, अनुराग ठाकुर जी, दे यूज्ड टू अनाउंस लॉट ऑफ थिंग्स इन द पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़. यू नो व्हाट ब्लंडर दे डिड? 3 लाख करोड़ जो कोल्ड स्टोरेज के लिए एलोकेट किया, वो भी पैकेज में डाल के सुना दिया. एंड वेरी फ्यू पीपल लाइक यू आर बॉदर्ड कि क्या हो रहा है. 20 लाख करोड़ हमने कोविड रिलीफ पैकेज दिया, उसमें से 3 लाख करोड़ कोल्ड स्टोरेजेस जो 4-5 साल में बनने हैं, वो भी उसमें घुसा दिया. और जिसके पास लिमिट थी 10 करोड़ की, उसको बोला कि आप 10 की बजाय 20% एक्स्ट्रा लिमिट ले लो, विदाउट एनी कोलेटरल, गवर्नमेंट विल गिव द गारंटी, यू आर एनीवेज पेइंग. बट टैक्स पेयर जिनकी जॉब चली गई, उनको भी कोई विंडो देते हैं कि अगर आप लेना चाहते हो इंटरेस्ट पे लोन ले लो, कोलेटरल फ्री तुम्हें लोन की विंडो दे दो. If a company had a limit, he could get the extension. बट जिसके पास नहीं था, जॉब वाला बंदा था, जिसकी 50% जॉब चली गई, वो बंदे को आज पैसे की जरूरत थी, उसकी कार का उसने लोन देना है, ये देना है, एक इंटरेस्ट तो देगा ही बंदा, जिसको जरूरत होगी वही लेगा. टैक्स पेयर को गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, इसीलिए टैक्स पेयर कहता है मैं क्यों टैक्स दूं. आपको शॉकिंग फिगर्स हैं. अभी ये युगम की प्रेजेंटेशन थी, IMS में हमारी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छी. ही हैज डन वेरी वेल इन ग्रेट लेक्स, विल बी सिलेक्टेड फॉर श्योर. और IMT भी अच्छी हुई है इंटरव्यू. IIM की होनी है, न्यू IIMs की. और एक और कहाँ की हुई अच्छी? जिम गोवा की अच्छी. देन इन हिज प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेड पूरे इंडिया में, इतना बड़ा इंडिया है, सिर्फ 80 लाख लोग डिक्लेयर करते हैं कि उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है. वी आर ए कंट्री ऑफ 140 करोड़. आई टेल माई स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स है नंबर, मिनिमम. लुधियाना में ही आप देख लेना, लाख बंदा होगा जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी. और हम कंट्री की बात कर रहे हैं, बॉम्बे में से 100 लुधियाने निकलते हैं, दिल्ली में से 70 लुधियाना निकलते हैं. आप सोचो कहाँ है. 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट और इनकम टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, बट नहीं करती. पब्लिक कहती है हमें सरकार क्या देती है. तो I have been writing to Modi and all government functionaries as suggestions also. I'm just telling you people so that you also know it. I recommend them कि आप एक कार्ड दो जिसने 50 लाख से ज़्यादा पर्सनल टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स, उसको प्लेटिनम कार्ड दो, एक को गोल्ड दो 30 लाख एटसेट्रा, एंड गिव देम स्मॉल प्रिविलेजेस. एयरपोर्ट पे एक लॉन्च बना दो, टैक्स पेयर रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर लॉन्च. रेलवे स्टेशन पे लॉन्च बना दो छोटी सी, क्या खर्चा आएगा, कुछ नहीं. एंड उनको, उनके बच्चों को एक कोटा दे दो ट्रेन की टिकट में, 2 सीट्स तत्काल के अलावा, कि टैक्स पेयर रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर नंबर डालो, आपको टिकट ले सकते. छोटी चीज़ें. और लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, तो उसका आंसर ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी हो रही है. MLA को आप दे रहे हो, MP को दे रहे हो कोटा, एक्स सर्विसमैन को दे रहे हो, VVIP को दे रहे हो, MLA को दे रहे हो. क्यों भाई? फिर आम पब्लिक जो टैक्स पेयर है, जो MLA को सैलरी देता है, उसको बेचारे को कोई इज्जत नहीं है. वो PGI जाता है, व्हेन आई गो टू PGI आई स्टैंड फॉर इन ए क्यू ऑफ 180 पीपल टू गेट ए OPD कार्ड, और वहाँ PGI स्टाफ लिखा हुआ साइड में. आप PGI स्टाफ ऑब्लिक रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर कर दो, 0 to 100 नंबर्स पे लगा दो कि उसमें प्रायोरिटी मिलेगी रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर्स को. अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे, मतलब गिव समथिंग टू द टैक्स पेयर. बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन ईमानदारी का उत्सव था, वाह वाह, ठा 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 ऐसे ऐसे करते हैं पार्लियामेंट में. अरे उत्सव में, मैं मजाक में कहता हूँ, मुझे उत्सव में कोई मिठाई भी मिलती है. If you go to some festival, you'll get something. So the person who was honest, he really was very happy during demonetization. But what did he get? Thinga. He has to pay, a person like me who has paid 30 lakh plus as income tax earlier in my jobs, then in business, etc.
my child will go to the college to study, I'll have to take study loan of 26 lakhs. एक पूरा नेशनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा क्लियर करके जाएगा, फिर 26 लाख की एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंडिया, फिर होम लोन, घर बनाना है, फिर लोन. तो पॉइंट इज, हमारे अभी पीछे जो मुझे जीएसटी वालों का फ़ोन आया, पंजाब जीएसटी, पहली बार चलो फ़ोन तो आया कि भाई आपका जीएसटी इतना होता है. आई वाज अमंग द, मतलब आपको पता है लुधियाना में कितने ट्यूशन सेंटर्स हैं और हु चार्जेस एंड पेज जीएसटी. 99% थिंग्स आर डन इन कैश and that does not get accounted into even in GST. No GST is charged, etc. Doctors, lawyers, tuition centers, blah blah. We pay honestly all GST to the government. तो मुझे फोन आया कि आपका इतना टारगेट है. मैं कहा ठीक है, आप मेरे से पूछ रहे हो, हमारा इतना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर मंथ में, बट आप जो नहीं दे रहे उनको देखिए. पंजाब में मेरे हिसाब से बॉल पार्क 10% है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, मोटा मोटी जस्ट 10%. और हमारी गवर्नमेंट रोती है हमारे पास पैसा नहीं है. और जो सेंटर भी कलेक्ट करता है ना जीएसटी पंजाब से, उसका भी 43% कम्स बैक टू द पंजाब. जो इनकम टैक्स अगर लुधियाना से इन्फोर्स होगा, उसका भी 43 पॉइंट समथिंग विल कम बैक टू द स्टेट्स. एक तो सेंटर स्टेट का है ही है. पंचकुला, रेस्ट ऑफ द इंडिया इट वुड बी अराउंड 40%, 50%. वो भी क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके डर से लोगों ने जीएसटी नंबर्स ले लिए. डिमोनेटाइजेशन, लोग डरे हुए थे कि यार बड़ा खतरनाक काम है, मोदी जी ने 18 लाख नोटिस दिए, पता नहीं क्या हो जाएगा. 3 लाख शेल कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं, बट वो 3 लाख शेल कंपनी के डायरेक्टर पे एक्शन जीरो. जो उनसे इनवॉइसेस ले रहे थे नकली, उन पे एक्शन जीरो, फॉलो अप एक्शन जीरो. तो अब पब्लिक फिर अब आ गई है कंफर्ट जोन में. बट पॉइंट इज, यू पीपल नीड टू नो इट इज योर मनी. आप पहला इसलिए इनकम टैक्स जीएसटी, मैंने बोला उनको जीएसटी, और कहते फिर आप हमसे क्या चाहते हो. मैं कहा गवर्नमेंट को चाहिए जो आपको 5 करोड़ 6 करोड़ जीएसटी दे चुका है, आप उनके ऐसे सेंटर्स को देखिए और उनके लिए कहीं पे एक छोटी सी ट्यूशन मार्केट बनाइए, उनके लॉटरी से निकालिए ड्रॉ एट ए सब्सिडाइज रेट, गिव देम समथिंग. तो मैं क्या 100 और सेंटर देंगे जीएसटी. आप देते क्या हो गवर्नमेंट की तरफ से? मुझे कोई आपका कोई बेनिफिट नहीं है. सिर्फ एक ही बेनिफिट है, बीइंग ऑनेस्ट. आई कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीवन, भले वो मोदी जी हो, भले वो यहाँ कोई जज साहब हो मुझे प्रेशराइज कर रहे हो फीस कम करो, भले कोई, मैं कह देता हूँ बच्चों को ये आपका टेस्ट से आया है, इसके बाद अब मोदी जी का भी फोन आएगा, विल नॉट रिड्यूस बाय 1 रुपी, बिकॉज आई एम पेइंग ऑनेस्टली जीएसटी. वी आर पेइंग, हमारे हेड ऑफिस भी ज़्यादा 25%, एंड देन वी आर गिविंग, जितना हम कमिट करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट देते हैं. सो नो इंसेंटिव्स अनाउंस फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. 3 पॉइंट समथिंग है शेयर. आपने एक्सपोर्ट्स पे कहाँ कोई इम्पेटस नहीं. एक्सिम बैंक जितना था उसको बढ़ाने का कोई फोकस नहीं, कोई रोड मैप. अब आप लोगों को सबसे हिटिंग पॉइंट्स हैं. नो रोड मैप गिवन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपको पता है आज इंडियन बिजनेसमैन लोन लेने जाता है, ही हैज टू बोरो एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर चाइनीज जाता है उसको 4.5-5% में मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. और फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट 2.5%, 3% में लोन मिलता है. बट इंडिया में क्या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. तो कॉर्पोरेट जिसने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई अगर उसने 12% इंटरेस्ट पे उठाना है पैसा, as compared to his counterpart in Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippines, etc. जिसने 4.5 पे उठाना है. तो आपका पहले ही कॉम्पिटिटिवनेस वहीं पे खत्म हो गई. और बजट में कोई बात नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं गवर्नमेंट को. सब ताड़ी बजाते हैं, बड़ा वेरी गुड बजट, 7 आउट ऑफ 10. हाँ जी. फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चाइना में जो मैंने सुना है 4.5 पर यूनिट है इंडस्ट्री को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. बिकॉज व्हेन आई वेंट टू बीजिंग, वी वर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर बाद बीजिंग. चाइना की हालत बुरी है हमसे, हमारे विलेजेस आर बेटर. वहाँ सब मिट्टी के घर, बंदे की एक्सप्लॉयटेशन है. बुजुर्ग आदमी ऐसे लेके स्टील प्लांट में ही इज टोइंग, स्वेटिंग, लेबर की खूब एक्सप्लॉयटेशन है. ह्यूमंस की वैल्यूज स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ. जैसे मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मोदी जी को या गवर्नमेंट्स को या भगवंत मान जी को करूँगा, तो nobody can do it in China. Even think about it. You talk about, मैं हमारा एजेंट था लोकल, मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई गवर्नमेंट का, कहते you talk about this, you think about protesting, next day you will not be seen. So चलो, it may be little exaggerated version, but the point is there electricity every 100 kilometer, 200 kilometer you will see nuclear power plants. 4.5 पे यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी. स्टील, दे आर सच ए स्मार्ट कंट्री. हमारा आयरन ओर, इंडिया का आयरन ओर चाइना और जापान में 30-40 साल एक्सप्लॉइट किया. आयरन ओर, कोल, कोक, वी हैव विद गॉड्स ग्रेस वी आर गिफ्टेड विद एवरीथिंग.
you guys when you pass out from BCom or BBA should be getting 50,000 60,000 rupees salaries as what if we are poor, if we are nicely governed, but because we are not nicely governed, यही सब freebies, अब कोई रेवड़ी देता है, कोई गच्चक देता है, दूसरे को बोलते हो रेडी दे रहा है, खुद आप गच्चक दे रहे हो, 4.5 लाख रुपया फ्री। अब 80 करोड़ लोगों को अगले साल तक आपने कह दिया खाना फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, कोविड से निकले हुए समय हो गया। Why people will work? Will find difficulty in getting labor. People will get into lethargic mode. They will very less migrants will come here. वो वहाँ बैठे हैं, आराम से मिल रहा है। So the point is you need to understand, आपका वो allocate कर दिया मोदी जी ने कितने हजारों करोड़, 80 करोड़ लोगों को अगले साल तक फ्री राशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वोट लेनी है, 2024 इलेक्शन है। So you need to see where money needed to be spent, nothing has been done. Land etc. मटेरियल का मैंने बोला, अब हमारे यहाँ पे 55 रुपए स्टील ले रहा है बंदा, वो साइकिल पार्ट्स बना रहा है। आप लोगों के पेरेंट्स साइकिल पार्ट्स में कहीं होते हैं या जानते होते हो, वो 55 रुपए की स्टील लेके फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्लेटिंग करेगा, कहाँ से कॉम्पिटिटिव होगा चाइना के साथ, जहाँ उसको 40 रुपए में स्टील मिल रहा है। स्टील 40 में, इलेक्ट्रिसिटी 4.5 रुपए यूनिट, यहाँ 7 रुपए। लेबर वहाँ कोई रिफॉर्म, कोई नॉर्म्स ही नहीं है। नेबर पे आई डोंट से वी आर ओके, लेबर इन लेबर वी आर गुड, लेबर लॉज आर गुड, इट प्रोटेक्ट्स द पीपल। बट इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तो बनाया है गवर्नमेंट ने। But I am talking about a big sector which is steel. In India, it costs around 55 rupees. Steel which is used, mild steel which is used to make component. In China, it is very competitive because they were using our iron ore for years. Supreme Court ने बैन लगाया तब रुका। जापान लेता रहा, यहाँ से लेके जाएगा iron ore, he will make steel at $400, then he will dump back to us at $800. This is how our country has been run over years. So no big spending amount on R&D. अब आप लोगों के पास phones हैं, किसी के पास मेड इन इंडिया फोन नहीं है। हम लैपटॉप लेते हैं, we take laptop of Dell. मैडम के पास लैपटॉप कौन सा है? HP. कहाँ है? हम किसी प्रोडक्ट में तो छाए वर्ल्ड में, और इसका एक ही कारण है, lack of R&D, research and development नहीं है। Industry spends in India, industry spends around 7 to 8% on R&D as compared to 20-25% of the global benchmark. And in India, government spends less than 2%, 1.5% something on R&D, whereas the worldwide it is 0.75% on R&D in India, और बाहर 2.5% 3%। तभी हमारा कोई, हम फोन लेने जाते हैं, OnePlus का लेते हैं, HCL का बेचारा लैपटॉप 18 साल से बन रहा है इंडिया में, but he is not able to compete. So government and private partnership से research and development needs to be the focus of the day. एक सेक्टर पे सिर्फ इस बार अनाउंस हुआ है, बताएगा कोई? फार्मास्यूटिकल पे, हाइड्रोजन एक फार्मास्यूटिकल पे हुआ है, एक ये डायमंड वाले पे कि सेंटर्स बनेंगे, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। मेन है ये वाला जो इस पे फार्मास्यूटिकल पे, बिकॉज वी हैव ए गुड शेयर इन फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट। इसमें वैक्सीन पे भी, जेनरिक मेडिसिन पे भी, और बट फार्मा टेक जितना इक्विपमेंट है सब इंपोर्ट करता है इंडिया, जर्मनी से, यूएसए से। उस पे वो बोल रही है फार्मा इंडस्ट्री की वो दो, बट चलो कुछ तो बात आई, बट वेयर इज ऑटोमोबाइल? हमारा हैरियर, सफारी, ये लोग क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड कोई एक प्रोडक्ट तो छाता, जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड से हमें पैसा लाके दे रहा है डॉलर में। तो ये आप लोगों को देखना है, रिसर्च, मतलब दीज आर द फोकस एरिया वेयर विच आर द, मैंने बच्चों को ना सेशन से पहले ही बोल दिया था, मैं ये लिख लो, ये बजट की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में आ जाएगा। और अगर आपको इंटरव्यू हो रही है तो आप इसको बोल दो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बजट। और ये मैंने बोला था उनको, मैं इस पे कुछ नहीं होना, 80% चांस है कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजें, ये विजनरी चीजें हैं R&D। नो बिग स्पेंडिंग, सो नो मेजर एलोकेशन टू फूड प्रोसेसिंग। कैन यू नो हाउ मेनी पीपल इन इंडिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर? लाख नहीं है भाई, 40 close to 45.4% directly. It comes to approximately 70 crore people. And if their incomes are less, then you, even if the GDP grows, GDP growth का तो मैंने सीधा ही देखा हुआ है, थोड़ी सी GST इन्फोर्स करो, GDP growth आई जा रही है। Number one, there is a big black economy present in our country. जैसे मैंने आपको बताया, tuition center, they should be coming in the net of the GST. There are advocates, doctors, उनका कोई इनकम कहीं नहीं आती, jewelers, some of the jewelers,
not all. There are जो branded नहीं है, etc. etc. There are many areas. Many. आप जाओ मटेरियल लेने, आपको कहेंगे अद्दे का बिल बना दिए सर. मैं कहा नहीं यार पूरा चाहिए, मैंने तो लोन लिया, मैंने तो चेक में देने हैं आपको पैसे. कोई चेकिंग नहीं है कभी किसी गाड़ी की, कोई बिल के बिना घूम रही है गाड़ियाँ. तो कहाँ है वो सारा इकोनॉमी में गोलमाल है. सो पैरेलल इकोनॉमी तो है ही है. तो द पॉइंट इज वेयर आई गॉट डेविड. हाँ, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर. आज हम स्माइली लेते हैं, सब लोगों ने खाया होगा स्माइली. इम्पोर्टेड होता है वो, और इंडिया में पोटैटो बेचारा फार्मर 3 रुपए में बेच रहा है. कॉलीफ्लावर वी बाय इट एट 20, द फार्मर इज सेलिंग एट 2 रुपीज, 3 रुपीज. बिग प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, टोमेटो प्यूरे, नेस्ले. मतलब गवर्नमेंट नीडेड टू बी फोकसिंग, जैसे इनका फूड से रिलेटेड लाइन, गवर्नमेंट नीडेड टू गिव इम्पेटस टू फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट लाइन वैल्यू एडिशन. हमारे पास क्यों यूएई से आता है वो फ्रेंच फ्राइज और ये सब, हमारे यहाँ क्या नहीं होता? हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड को? सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो यू नीड टू वेक अप and you need to be a better citizen first of all, then a better student, then a MBA aspirant. हमारे बच्चे जाते हैं उधर, पैनल को ऐसा कुछ बता के आए थे. they say how do you know this? So they say we read it from Economic Times, and then they say we also read Economic Times, because this is vision. You need to be. आपसे पूछेगा कहीं इंटरव्यू में, बड़ी इंटरव्यू, यू आर राहुल गांधी, हाउ विल यू रिवाइव कांग्रेस? भारत जोड़ो से नहीं कांग्रेस रिवाइव होती. It was a good initiative otherwise. If there was really a very big hit rate among states, if there was very big problem, it's good initiative, no problem. But आप पहले एक serious और एक अच्छे positive opposition तो बनो. आप GST को जो 1,52,000 आज आपको करोड़ दे रहा है सरकार को, उसको बोलोगे गब्बर सिंह टैक्स, and then you will think people will take you seriously. The point is, you need to say yes, GST is good. ये amendment करो. आपका स्वच्छ भारत इज गुड मोदी जी, बट आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो 9% है. आपका ये स्वच्छ भारत के अलावा दूसरा कौन सा बड़ा था? नहीं, एक और बहुत बड़ा स्मार्ट सिटीज. हम भी स्मार्ट सिटी में आते हैं, पता है लुधियाना. स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा है, इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, बट व्हाई द इम्प्लीमेंटेशन इज ओनली 9%? वहां पकड़ो मोदी जी को, रादर देन जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग ऑफ थिंग्स वेयर ही इज नॉट कल्पेबल, जहां वो पकड़ा नहीं जा सकता उनको. तो यू नीड टू बिकम बेटर अवेयर सिटीजन. यही इंटरव्यूज में आपको जनरल अवेयर, करंट अवेयर का पूछेगा. बाकी बीकॉम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. वी हैव अ लिस्ट ऑफ 427 इन द इंटरव्यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई सेड, फर्स्ट वाज 300% प्रिपरेशन. आपके 427 क्वेश्चन होते हैं, सारे पूरे रगड़ के गए थे. आपके ट्रेड से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज तक भी पूछे जा रहे हैं, 90% आर फ्रॉम दैट. वी हैव अ लिस्ट ऑफ 427 क्वेश्चंस. उसी में से 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. देन 300% confidence in you. Confidence is everything. अब सचिन तेंदुलकर का मैं एग्जांपल देता होता हूँ, इतना बड़ा प्लेयर, नर्वस 90s में जब 100 बनानी थी, 12-14 बार आउट हुआ 90 to 100 में. क्या था? ओनली मतलब he used to get nervous. और वीरेंद्र सहवाग जी को देखो, 256, उसने बोला आराम से बना ली, छक्का मार के 300 बनाया. बॉल आएगी, he will prepare well, but bat like वीरेंद्र सहवाग. Prepare like Sachin Tendulkar, but bat like Virendra Sehwag. Confidence is everything. क्योंकि टेबल के उधर अगर 300% कॉन्फिडेंस है, तो ही इस टेबल के इधर 100 पहुंचेगा. और कोई यूनिक पॉइंट आपके पास होना चाहिए, वो प्रिपरेशन से आता है. और फिर है 300% ज़ील कि आपको ये चाहिए कॉलेज. अगर नहीं है, मैं बच्चों को बोलता हूँ मत दो इंटरव्यू. अगर आपको ये कॉलेज लग रहा है कि ऐसे ही है टाइम पर, मत दो इंटरव्यू. अपना भी टाइम मत खराब करो, उनका भी मत करो. 300% ज़ील एंड 300% पॉजिटिव कर्मा. What they are earning today is positive karma. They have taken out their time. They are all touchwood busy people. I have also taken out my time. And like them, अगर मैं उनको सेंटर में बुलाऊं, कभी भी बुला लूं कि आ जाओ भैया इंटरव्यूज करनी है, मॉक, they will volunteer. हर बैच से 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं who come back. एक बच्ची थी आप ही के इंस्टीट्यूट से, उशलीन कौर. इतना बड़ा उसका रजिस्टर भरा हुआ था जो आई शिलोंग के इंटरव्यू देने गई. ऐसे हमारे जो 113 टॉपिक्स पे वी हैव GDPI सेशंस, ऑलमोस्ट 100+ आवर्स क्लासेस. तो उसकी शिलोंग में ना वैट था, राइटिंग, वहाँ रह गया उसका रजिस्टर. तो दे आस्क्ड हर के शिलीन यू फॉरगॉट योर रजिस्टर. कहते हैं सॉरी सर, आई फॉरगॉट बाय मिस्टेक. दे वेंट थ्रू इट. उस टाइम जो भी चल रहा था, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये वो स्कीम्स, एवरीथिंग वाज विद डाटा, विद बुलेट पॉइंट्स. तो दे अप्रिशिएटेड हर. शिलीन यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, थैंक्स. तो उन्होंने कहा थैंक्स. और शी गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट लिस्ट. 92.93% आया था जनरल कैटेगरी. और ऐसे ही उसका इंदौर में चलो सेकंड लिस्ट में हो गया. वेट लिस्ट आया था पहले, फिर ऐसा पॉजिटिव कर्मा. वो भी जल्दी आएगी.
in Ludhiana, she will talk to me, and she may visit the center. Uska to the husband is also from our center, so they both were our students. Gursimran Singh. अभी ऐसे 4-5 केस हो गए, and they all are touchwood very happy and well settled. They are in Mumbai now, और what is she doing? बढ़ जाएगी अब और लोग आना चाहिए. So what is she doing today? You need to know. 100 crore की securities every day she is buying and selling for HDFC. पहले 1 साल HDFC ने उनको ट्रेनिंग दी बिठा के टर्मिनल पे कि आप सीखो कैसे करना है. और नाउ शी वाज टेलिंग उसका कोई टारगेट था 15 करोड़ या कुछ, कहती मैंने हाफ ईयर में टारगेट मीट कर लिया. You have to SLR का तो सबको पता होता, statutory liquidity. Every bank has to have money in securities. So they what they do is पार करने की बजाय they trade during the day. They make money out of it. So that's what 100 crore security she is selling and buying every day. So she also has this. मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनके positive karma account was very high. Moment you enter, the aura speaks for themselves. Package approximately अभी 22 के करीब है. Then there was a student, अभी उसने आना था आज, सिमरन आहूजा, सिमरन जलोत्रा. She was to come here, but 4-5 दिन पहले उसने वो पहले आपको भेजा था, उसके बाद कहती मेरा 5% चांस था, बट जब फ्लाइट की बुक हो गई then she said कि मुझे जाना पड़ेगा. She is working with ITC in Bangalore. 1.5 साल उसने वर्क फ्रॉम होम किया. उसका पैकेज इज अराउंड 32 प्लस एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. और आज के दिन में एक इंश्योरेंस वाले साहब आए हमारे पास एक दिन, उन्होंने कहा, कहते आप ना कैलकुलेशन उन्होंने करके दिखाई एक्सेल में, अगर किसी बच्चे का 22 lakhs का भी स्टार्टिंग पैकेज लगता है तो ही और शी इज लाइकली टू रिटायर विद अ सेविंग ऑफ 150 प्लस करोड़. दैट बाय द सिंपल कंपाउंडिंग. हाँ तो चलो अच्छा ही है. और क्या तो पॉइंट. अब एक और बच्चा है अभयराज सिंह, ही वाज अवर कैट 2012 स्टूडेंट, 96.14. मैंने जब टेक ओवर किया था सेंटर, ही वाज माय फर्स्ट बैच टॉपर. 2 बच्चे थे 96.14. ही वेंट टू IIT चेन्नई, वहाँ से किया जॉब, कंप्लीट किया, फिर ओला कैब्स में जॉब किया, नीदरलैंड ओला कैब. अब ही हैज शिफ्टेड इन अनदर कंपनी, 1.7 करोड़ पैकेज. अभी भी ही वाज हियर इन लुधियाना. उसने अपनी मैरिज पे भी बुलाया, अपनी सिस्टर की मैरिज पे भी बुलाया, और उसके बेटे की लोड़ी थी उस पे भी बुलाया. सो द पॉइंट इज दिस इज द लव एंड अफेक्शन व्हिच कीप्स अस ड्राइविंग, कीप्स अस गोइंग. एंड एक और बच्चा है लक्ष्य लखनपाल, आपके जैसा कॉमर्स का, फ्रॉम SCD गवर्नमेंट कॉलेज. ही डिड इट फ्रॉम IMT गाजियाबाद एंड आपके कॉलेज से जाना था. उसी ने मुझे आपका बताया कि यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. तो ही वर्क फॉर Deloitte for 3 years. Now he joined a company BDO Global, and now he's in USA Los Angeles और 1 करोड़ प्लस पैकेज है. और अच्छी बात, उसको कंपनी ने बिजनेस क्लास की टिकट दी जाने की. 1 month स्टे इन ए 5-star होटल इन USA लॉस एंजलिस, और अब उसको आगे कंफर्मेशन की जाए. ऐसे जब भी मैं टचवुड अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने जाता हूँ, ही इज आल्सो स्टडीइंग इन एक्सेलराइज जमशेदपुर. उसको हमने अरविंदो में ज्वाइन कराया था. ही हैड क्लियर्ड IIM Rohtak, and we left IIM Rohtak and we made him to join Aurobindo because his wait list was 95 in IIM Indore's IPM test. मुझे उम्मीद थी हो जाएगा क्लियर, बट I still thought कि जो मैं मतलब I was clear he is not going to Delhi University, not other than Shri Ram College. और अभी भी सिमरन जो है, सिमरन का भी परसेंटेज बहुत अच्छा था. She could have also gone to Delhi University. इनका भी परसेंटेज बहुत अच्छा था. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर देन श्री राम कॉलेजेस में जा सकते थे, बट दे स्टेड इन लुधियाना, सो दे बेनिफिटेड. कैट में 99.34, 96, 92 प्लस, किसी के 99 पॉइंट. अभी जो है हमारा आश्रय, आपको पता है आश्रय जैन 99.89. मैंने अभी तक पूरे पंजाब रीजन में कॉमर्स के बच्चे का 99.89 नहीं देखा. और हमारी अगर आप लिस्ट देखोगे इसमें रिजल्ट्स की, BCom BBA बहुत है, IIT नहीं है यहाँ, कोई NIT नहीं है, PEC नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज एक है, वहाँ से भी बच्चे आते नहीं हैं GNE के. हमारे पास कॉमर्स के बच्चे आते हैं, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज के बच्चे 97 परसेंटाइल फर्स्ट है, रश्मि भोपाल. सो इट इज़ डूएबल, द पॉइंट इज दैट. सो इफ यू स्टे फोकस्ड, तो पॉजिटिव कर्मा. इसके साथ अब सर आई थिंक वी कैन कवर YMBA का मोटा मोटा मैंने कवर करा. अब ये दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. ये बेस्ट पैनल है. मैंने प्रिंसिपल सर को भी कहा, मैं इनका ऑडिटोरियम में कराना चाहिए था सेशन, बिकॉज ही हैज डन MBA फ्रॉम MDA गुड़गांव, देन ही हैज वर्कड विद GlaxoSmithKline. ही वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम बिगिनिंग. एक बच्चों के साथ सेशन था लास्ट ईयर इनका ऑनलाइन,
यू आर सेइंग थोड़े टाइम में मैं आ ही रहा हूँ सर लुधियाना। मैं बच्चों को बोलता हूँ जिन्होंने बिजनेस में भी रहना है, आप MBA करो, अप्रोक्सीमेटली एक साल तक कोशिश करो, जॉब करो, फिर वापस आओ। जो आप MBA में सीखोगे, अभी ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, प्राइसलेस। फिर जो आप एक साल कंपनी के इंसेंटिव सिस्टम्स कैसे मोटिवेशन करते हैं एटसेट्रा, रिटेल में एटसेट्रा, दैट गिव्स यू एक्सपोजर। और फिर आप आगे बिजनेस में करते हो तो वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस कैन बी इमेंस। होपफुली यू विल शेयर द सिमिलर। ही इज इनटू जॉब, और जॉब वाला मैंने बताया ये 22 लाख वाला ही इज प्लस दैट, and hopefully he will retire with 150 crore plus saving. So Navnoor, another classical example, entrepreneurship का। एक और बच्चा आप ही के कॉलेज का, महिंद्रू, क्या है उसका नाम? दीपांकर महिंद्रू, दीपांकर फर्स्ट नाम मुझे याद है, दीपांकर मग्गू। He has started his business in, he did MBA from Great Lakes Chennai। उसके बाद एक साल उस टाइम बार्कलेस का बैंकिंग था, he worked with Barclays for 1 year, वेंचर कैपिटलिस्ट से दोस्ती हुई, उसे पता चला फंडिंग का सिस्टम, आज उसने अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस स्टार्ट किया। एक दिन स्टेशन पे मिला था, he shared 10 crore plus is his turnover. So Noor has started how many years back? 2 years? No, 6-7 months. 6-7 months, and I think you have crossed 2 crore in turnover. Once year, 1 crore turnover, and last month she became profitable. So she will share how what she learned from MBA applied in business helped her. आपने जॉब भी की थी ना, कहाँ? अरे कोटेक, okay. Which field? I was in HNI, managing engineers. High net individual, high net worth having individual. So I'll hand over to them. कोई माइक है अच्छा जिसकी पावर हो, वो वाले की तो आवाज चलेगा? चलो, all the best, God bless. कोई नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, that सीधे में बैठे हैं। यूथ ऐसे हो गया तो सीतारामन जी तो पहले ही मजे लेने को तैयार है हमारे साथ। 1.5 घंटे की स्पीच में 1.25 घंटा शी स्पोक ओनली सब्जेक्टिव थिंग्स, ये हो गया, नो फिगर्स। क्या है ये? पिछले बजट्स में सुनने को बजट इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा लगता है, सुनते ही आप कहोगे 7-8 नंबर, वाह। और जब आप 3 दिन बाद पूछेगा कहेगा 2 नंबर, क्योंकि इन 2 बजट पहले इन्होंने बोला कोल्ड स्टोरेज हम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, कोल्ड ट्रेन चला देंगे। मैं कहा यार पंजाब का भला होगा, बहुत बड़ी गल है। और जीरो इम्प्लीमेंटेशन। मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ मिनिस्टर अच्छे हैं, गडकरी साहब, यहाँ कोई ये रेलवेज का भी मिनिस्टर अच्छा है, प्रोग्रेसेस यू कैन सी एंड यू विल सी। और जहाँ मिनिस्टर अच्छा नहीं है, ही इज नॉट एबल टू फॉलो अप एंड गेट द वर्क। दैट इज द बिगेस्ट इशू। चलो, गॉड ब्लेस। आप बच्चे चेयर ले जाओ।